Hello dear students, once again I PRAVEEN Dubey welcome you all to RBS Classes the Pariksha Guru, and I am just trying to make you prepared for TGT, PGT, LT, NET, JRF and higher education in the expertization of English. So I would like to urge you to subscribe, watch, like and share. And don't forget pressing the bell icon in order to get all the notifications. अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. Very soon we are going to begin with our offline classes, and in order to get admission over there, you must call the numbers given on the board. And if you want to take admission in online classes and want to take classes on our app, regular classes if you want, if you don't want to have dispersed classes, one topic right from here and one topic right from there, you don't get regular classes, and this is why you don't get selected. लालच बुरी बला होती है. अगर आप चाहेंगे कि हम इतना ही पढ़ के सब कुछ निकाल लें, and you don't want to waste money according to you, आपके अनुसार अगर पैसा बर्बाद नहीं करना है तो take admission immediately and get selected and enjoy your job. That I'll not say job, I'll say that service. Today I have brought for you a very important topic, not only very important topic, but you can call it one of the most important topics, and that is Victorian age and its literature. Victorian age and its literature. The topic is Victorian age and its literature. Victorian age and its literature. I have been telling you since the time I began this class that every literature is the product of its background, its society and its concepts, and hence Victorian literature is the product of Victorian age. And before going through Victorian literature, we must try to find what was the background of Victorian literature and what was the condition of Victorian age and how the things emerged after romantic era. रोमांटिक एरा के बाद चीजें कैसे आई, विक्टोरियन एज में क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या अच्छाइयां रही लिटरेचर के लिए, दैट विल डिस्कस राइट हियर. Victorian age, the very first thing that why this age is called Victorian age. पहली चीज Victorian age से क्यों कहा जाता है. Second thing that we'll discuss, that when Victorian age began and is there any controversy on its commencement or on the date of its commencement. Victorian age कब शुरू हुआ और क्या कोई विवाद है इस पर कि Victorian age किस डेट को शुरू हुआ या किस ईयर में शुरू हुआ, that we'll discuss first. That's why I haven't written here the duration of Victorian period, because there was some controversy, क्योंकि कुछ विवाद था उस पर. And the second thing that we'll discuss, that who Queen Victoria was and when she came to be coronated or when she ascended the throne and when she died, and what kind of reign Victorian age was, that we'll discuss here. And only after understanding the things of Victorian era we'll try to discuss the Victorian literature. तब आप आसानी से समझ पाएंगे. Now, the very first thing that why
it is called Victorian age because this particular age was being reigned by Queen Victoria, इंग्लैंड की रानी जब क्वीन विक्टोरिया थी उसी समय को कहा जाता है Victorian period. But the controversy is that when Queen Victoria ascended the throne and when Victorian age, especially in England, is considered to be. Now, one fact you must keep inside your brains that Queen Victoria ascended the throne in 1837, while sometimes Victorian age is considered to have been started or to have started in 1832. Why? Why? Because in 1832, these are the facts, keep inside your brains. Victoria ascended the throne of England on 22nd of June 1837. Victoria ascended the throne of England on 22nd of June 1837. But Victorian age is supposed to begin in 1832. So what happened in 1832? 1832 में क्या हुआ? Next fact is a reform bill was brought and passed in the Senate of England in 1832. So these are the facts. This is the controversy. कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया 1837 में गद्दी पर बैठी, इसलिए 1837 से विक्टोरियन एज की शुरुआत की जाए. लेकिन सम क्रिटिक्स आर देयर, कुछ आलोचक समालोचक हैं जिनका मानना है कि नहीं, चूंकि एक रिफॉर्म बिल वाज ब्रॉट एंड पास्ड एंड इट बिकेम एन एक्ट. आपको पता होना चाहिए कि जब कोई विधेयक मींस बिल, जब कोई बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, सीनेट का मतलब पार्लियामेंट है, ठीक है, और वो पास हो जाता है तब उसे हम कानून कहते हैं, वही बन जाता है एक्ट. तो उनका मानना है कि भाई 1837 में राजगद्दी पर बैठी, इसलिए शुरुआत यहां से माना जाना चाहिए. लेकिन नहीं, अब सम क्रिटिक्स आर देयर कि 1832 में रिफॉर्म बिल वाज ब्रॉट in the Parliament of England and it came to be passed. And what this reform bill was, ये सुधार विधेयक क्या था? रिफॉर्म बिल मतलब सुधार विधेयक. This reform bill was brought in the Senate of England in order to make almost all the fields of life happy. जिंदगी के जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में खुशियां भरने के लिए ये लाया गया था, खुशियां भरने के लिए, ठीक है, उन सभी में खुशियां भरने के लिए ये बिल लाया गया था. तो जीवन के हर क्षेत्र में यहां से सुधार होना शुरू हुआ. जीवन के हर क्षेत्र में यहां से सुधार होना शुरू हुआ है, ठीक है. तो कुछ लोग यहां से मानेंगे, कुछ लोग यहां से. आपके लिए जो है, आपको कहां से मानना है, आप यहां से मानिए, सीधे सीधे मानिए कि विक्टोरियन एज
1832 to 1901, because this is the year 1901 is the year in which Queen Victoria died. आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली जो अभी तक की, जब तक की हम बात कर रहे हैं, जो कोई मोनार्क था या थी, वो थी क्वीन विक्टोरिया। कितने दिनों तक इन्होंने शासन किया, ये देखिए, मजेदार बात देखिए, मामूली शासन इन्होंने नहीं किया। She reigned 63 years. $63 201 days, 63 साल 216 दिन तक उन्होंने शासन किया, मामूली समय नहीं है। एंड दिस रिकॉर्ड came to be broken only after Queen Elizabeth II reigned. Queen Elizabeth II ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1952 से लेकर लगातार शासन उन्होंने किया और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये समय था। आप इसमें 63 साल 216 दिन जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस दिन उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो दिस इज द फैक्ट। तो पहली चीज, Victorian age came to be titled only after the name of Queen Victoria. Sometimes it is said that Victorian age began in 1837 with the ascendance of Queen Victoria on the throne of the England. Why I said the England? Because now it became very important because it was being ruled by Queen Victoria. And sometimes it is said that Queen Victoria became the queen in 1837, but a reform bill was brought in the Senate of England and it came to be passed, and in almost all the fields of life a kind of reformation began. और एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई विक्टोरियन एज में। कुछ अच्छाइयां आई तो कुछ बुराइयां भी आई। ये नियम ही दुनिया का है कि कुछ अच्छाइयां आएंगी तो कुछ बुराइयां आएंगी, कुछ बुराइयां आएंगी तो कुछ अच्छाइयां आएंगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो रिफॉर्मेशंस आए, कहां कहां आए, ये देखिए रिफॉर्मेशंस। ड्यूरिंग विक्टोरियन एज पहली चीज जो आई वो आई एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन में सुधार आया। चाइल्ड लेबर में सुधार आया। अब आप देख सकते हैं इन चाइल्ड लेबर में आया। प्रोस्टिट्यूशन में आया। जुडिशियरी में आया। बहुत हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब डिस्कस करना होगा तब करेंगे। देखिए, जब आपके एजुकेशन सिस्टम में सुधार होता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आया एजुकेशन सिस्टम में सुधार। जब एजुकेशन में सुधार आया तो लोगों को यह पता चला कि भाई पढ़ना लिखना चाहिए, वही जिंदगी में सुधार ला सकती है। तो चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम की व्यवस्था थी, वो भी धीरे धीरे डिलीट होने लगी। देखिए, समस्याएं उत्पन्न कैसे होती हैं। सबसे पहले एजुकेशन आया तो मेडिकल फैसिलिटीज में कुछ अच्छाई हुई, मेडिकल फैसिलिटीज कुछ अच्छी हुई। तो जो मोर्टालिटी रेट थी, यहां देख लीजिए, बिकॉज ऑफ improvement in medical facilities,
Because of improvement in medical facilities, mortality rate dropped. Mortality rate dropped drastically. जैसे ही एजुकेशन में सुधार हुआ तो मेडिकल फैसिलिटीज में ऑटोमेटिकली सुधार हुआ, और मेडिकल फैसिलिटीज में जब सुधार हुआ उसके बाद जो मोर्टेलिटी रेट थी, मृत्यु दर थी, वो बड़ी तेजी से गिर गई। मतलब लोगों का मरना कम हो गया, और किन्हीं कारणों से जो बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे थे वो पैदा होने लगे, तो जो जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि ओनली विद इन 20 ईयर्स, राइट फ्रॉम 1820 टू 1840, इंग्लैंड की जनसंख्या दुगुना हो गई, ऐसा कहा जाता है। और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, सारी समस्याएं, सबसे पहले तो भोजन की समस्या हो गई, तो उसके लिए लोगों ने बहुत कमाने के लिए बहुत कुछ करना शुरू किया। जैसे पैसे घर में नहीं होते थे, बड़े कमा नहीं पाते थे, तो चाइल्ड लेबर शुरू हो गया, और कुछ लड़कियां, कुछ फीमेल्स इसलिए पैदा की जाने लगी कि उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाएगा, उससे पैसा मिलेगा। जुडिशियरी केसेस ज्यादा हो गई, जुडिशियरी की समस्या बढ़ी। लेकिन सब कुछ बढ़ने के बावजूद भी चीजों में सुधार हो रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ये सब चीजें बढ़ी, लेकिन जो शिक्षा थी, जैसे आप देखते हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन जाम की समस्या फिर भी कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा बढ़ी तो सारी फैसिलिटीज बढ़ी, सड़कें बढ़ी, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन तक रोड्स भारत में बनाई जाने लगी। तो जब शिक्षा रहेगी तो व्यवस्था चाहे जैसी भी रहे। जब जनसंख्या भारत की 20 करोड़ थी, तब लगभग 20% लोग भुखमरी के शिकार होते थे। आज जनसंख्या 140 करोड़ है, इसके बावजूद भी उतने लोग भुखमरी के शिकार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन जो थी वो अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, just go through the novels of Charles Dickens, because he is supposed to be the novelist of social reforms. उन्हें हम सामाजिक सुधारों का क्या कहते हैं? नॉवेलिस्ट कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं आई, और जब समस्याएं आती हैं तो डिप्रेशंस बढ़ते हैं, डिप्रेशंस बढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते हैं, और फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है तो परमानेंट पेसिमिज्म आपके दिमाग में घर कर जाता है। परमानेंट पेसिमिज्म, निराशावादी युग में आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये विक्टोरियन पीरियड की सारी बातें रही। ठीक, देखिए, जब महान लोग पैदा होते हैं, महान कुछ लिखते हैं, तभी जो युग होता है वो महान बनता है। ये समय था कार्ल मार्क्स का। दिस वॉज द टाइम ऑफ कार्ल मार्क्स। ये समय था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स Karl Marx was a sociologist, एक समाज शास्त्री था। कार्ल मार्क्स की एक बुक आई जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। It came in 1848. Another book of Karl Marx came in Das Kapital. It came in 1867. And there was another great evolutionist, विकासवादी व्यवस्था में रहने वाला व्यक्ति, उसका नाम था डार्विन। डार्विन्स very famous book, The Origin of Species. It came in 1859.
These three books played a very important role in the development of society, in the progressive development of Victorian era. Communist Manifesto tried well to bring a sort of communism in the society, and because of the emergence of communism, middle class started developing fast. Or you can say that middle class emerged right from here. अगर मिडिल क्लास की बात करेंगे ठीक से कहां उत्पत्ति इसकी हुई, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड के दौरान, ओनली आफ्टर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ कार्ल मार्क्स दैट केम इन 1848. कम्युनिज्म, देखिए एक होता है सच्चा कम्युनिज्म और एक होता है झूठा कम्युनिज्म. झूठे कम्युनिज्म की हम बात करें, साम्यवाद की हम बात करें, तो केवल इतना कहेंगे कि जो समाज है, समाज किसी माल गोदाम के सामने लटकती हुई उस बाल्टी के समान है जिस पर लिखा तो होता है आग लेकिन भरा होता है बालू और पानी. Once again I say, I repeat, समाज किसी माल गोदाम के सामने लटकती हुई उस बाल्टी के समान है जिस पर लिखा तो होता है आग लेकिन भरा होता है बालू और पानी. Keep inside your brains. Communist Manifesto. This is just an imagination. ये केवल कल्पना हो सकती है. This can never be envisaged. Why? Only because this is just an idealism. ये केवल आदर्शवाद है, क्योंकि Karl Marx himself says that history is the history of class struggle. जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है और कुछ भी नहीं है. यहां केवल वर्ग संघर्ष है and nothing else. कुछ भी नहीं है. Why? Because in every society, in every age, you find only two classes. One class that exploits and one class that is exploited. एक जो शोषण करता है और एक जो शोषित होता है. So this is what. So communism is almost impossible in this society, in this world. This is just an idealism. Communism. In order to become equal, the people of this society just tried well to get cash money. और उसके लिए लोगों ने काम करना शुरू किया. देखिए पहले जो काम होते थे उसमें काम के बदले आपको अनाज दे दिया जाता था, खाना दे दिया जाता था, उससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. जब कैश फ्लो आया समाज में, जब पैसा लोगों को हाथ में मिलने लगा, तब वो अपना जीवन जीना शुरू किए, अपने तरीके से जीना शुरू किए. एंड इन दिस evolution, Karl Marx played a very important role through this Communist Manifesto. साम्यवादी घोषणा पत्र था ये कि कैसे साम्यवाद लाया जाए. दास कैपिटल की बात करें, दास कैपिटल इज अ वेरी फेमस बुक, यू नो. आप जानते हैं दास कैपिटल बहुत ही पॉपुलर बुक है. दास कैपिटल में दासेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कैपिटल. ये पूंजी थे, और पूंजी क्या होती है? जिससे आपको कुछ लाभ हो, वो पूंजी है. अलमारी में रखा हुआ पैसा पूंजी नहीं है, दैट इज नॉट कैपिटल. आपके जेब में रखा हुआ पैसा पूंजी नहीं है. बैंक में रखा हुआ पैसा पूंजी है इफ यू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट. अगर उस पर आपको ब्याज मिलता है तो पूंजी है. जिस किसी भी चीज की कीमत बढ़ती रहे, दैट इज कैपिटल. और जो स्टैग्नेंट हो जाए, इफ योर मनी इज स्टैग्नेंट और योर प्रॉपर्टी इज स्टैग्नेंट, then that is not पूंजी, that is not capital. Darwin's The Origin of Species became very important. Why? Because for the first time in the human history, this was the book that declared God dead. जिसने कहा भगवान कभी था ही नहीं, and we have not been created by God. ईश्वर ने हमें क्रिएट नहीं किया है. We are not the image of God. हम ईश्वर की इमेज नहीं है, बल्कि we are the resultant of the gradual development of the process. हम सब क्रमिक विकास के परिणाम हैं और कुछ भी नहीं. धीरे धीरे आज हम इस व्यवस्था में पहुंचे हैं. जैसे हम दिख रहे हैं, इससे पहले कुछ और थे, कुछ और थे, कुछ और थे, and we started right from the beginning, and we are man now. We are persons now. We are as we see ourselves these days. The Das Kapital, The Origin of Species, Communist Manifesto, these are the books that came during Victorian period and gave literature and the age itself a new direction.
लिटरेचर को और युग को एक नई दिशा इन लोगों ने दे दी, इन किताबों ने दे दिया। बट लुक एट द थिंग्स दैट वर गोइंग बैक। ये सब कुछ तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ चीजें पीछे भी जा रही थी। जब समाज में विकास आता है, कंक्रीट डेवलपमेंट आता है, तो समाज के जो एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट्स, इमोशनल डेवलपमेंट्स, ये नीचे जाने लगते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट्स, ये सब नीचे जाने लगते हैं। इन सब का हनन होने लगता है, ये सब डिक्लाइन करने लगते हैं। अब चूंकि विकास देखा जाने लगा, लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, और इसलिए धीरे 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 धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भावना, इन सब का ह्रास हुआ। और धर्म, संस्कृति, भावना, संवेदना, these are the fine objects for literature, these are the fine ingredients for literature। इसलिए विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर है वो भी बहुत खूबसूरत हो गया। बट मोस्ट ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर इज फुल ऑफ पेसिमिज्म, पेसिमिज्म से भरा हुआ है। कैसे? A class started between science and religion। साइंस और रिलीजन के बीच में क्लास शुरू हुआ, खींचातानी शुरू हुई कि साइंस बड़ा है कि रिलीजन बड़ा है, विज्ञान बड़ा है। एंड लॉजिक इंटर्ड द रिलीजन, रिलीजन में एक लॉजिक घुस गया। There was a great sociologist who is known as the father of sociology। एक बड़े समाजशास्त्री थे जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। एंड he was August Comte, वो अगस्त कुम्टे थे, who said that there are तीन स्टॉप्स हैं in the journey of religion। धर्म की यात्रा में अभी तक 3 स्टॉप आए हैं, 3 रुकावटें आई हैं, 3 जगह रुकने को हुआ है। और एक उसमें है जिसे हम कहते हैं थियोलॉजी। दिस इज द जर्नी ऑफ रिलीजन। सेकंड इज मेटाफिजिक्स, and third is positivism। थर्ड इज पॉजिटिविज्म। थियोलॉजी कहते हैं जब ईश्वर में पूरा विश्वास था, धर्म में पूरा विश्वास था कि ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, एंड फॉर आवर ऑल द एक्टिविटीज ओनली गॉड इज अकाउंटेबल, केवल ईश्वर जिम्मेदार है। एंड मेटाफिजिक्स जब धर्म में लॉजिक घुस गया, यहां धर्म में लॉजिक घुस गया विक्टोरियन एज में, लोग सवाल करने लगे कि क्या ये है, क्या ये नहीं है, धर्म में लॉजिक का घुसना मेटाफिजिक्स हो गया। अब पॉजिटिविज्म, पूरी तरीके से धर्म को बाहर कर दिया गया, दैट एवरीथिंग हियर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड थ्रू साइंस। हर चीज साइंस से डिस्क्राइब की जा रही है, रिलीजन का कहीं नामो निशान नहीं रह गया। तो अ क्लैश बिटवीन साइंस एंड रिलीजन वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड। साइंस अपने लिए, साइंस भी बहुत पॉपुलर हो गया था, वेरी पावरफुल, एंड रिलीजन वाज ऑलरेडी वेरी पावरफुल। रिलीजन तो पहले से ही पावरफुल था। नाउ अब देखिए स्थितियां कैसे बदलती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 3 ग्रेट पोएट्स। इस पीरियड के दौरान 3 बड़े पोएट्स थे। देखिए उनकी चर्चा हम करते हैं। 3 ग्रेट पोएट्स।
पोएट्स तो बहुत सारे थे। 3 great poets of विक्टोरियन एज। देखिए, हम उन्हीं पोएट्स के नाम लेंगे जिनके थ्रू हम अपनी बात को समझा पाए, बाकी पोएट्स तो बहुत रहे होंगे। नंबर 1 comes Alfred Lord Tennyson. Number 2 comes MATT, स्पेलिंग बार बार बता रहा हूं, मैथ्यू की स्पेलिंग में टी आमतौर पर लोग छोड़ देते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड। 3 रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगर हम बात करें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो यहां आपको इतना जानना है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन is known as the poet of compromise. The poet of compromise. और दूसरी चीज, Victorian is known to be the age of compromise. ध्यान देख लीजिए, 2 फैक्ट्स आपके तैयार हुए। पहला, विक्टोरियन एज इज नोन एज द एज ऑफ कंप्रोमाइज, इसे कंप्रोमाइज का युग कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कभी एग्जाम में विच एज इज नोन एज द एज ऑफ कंप्रोमाइज, सिंपली यू हैव टू आंसर इट्स विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एज। एंड हु इज नोन एज द पोएट ऑफ कंप्रोमाइज, इट इज लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है, वेयर वी कांट प्रूव वी स्टार्ट बिलीविंग। जहां हम चीजों को प्रूव नहीं कर पाते हैं, वहीं से हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आज भी यही दशा है। पहले लोग डॉक्टर को दिखाएंगे पेशेंट को, जब डॉक्टर कह देगा आई एम सॉरी, तब वो बात करना शुरू करेंगे, ईश्वर की, धर्म कर्म की बातें करना शुरू करेंगे। तो टेनिसन ने बहुत कुछ दिखाया है, जब विस्तार से हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी इनके बारे में कुल इतना जानिए। टेनिसन ऐसे व्यक्ति हैं कि ही बिलीव्स इन साइंस एंड रिलीजन बोथ, वो साइंस और रिलीजन दोनों में विश्वास करते हैं। That is why he is known as the poet of compromise. Second comes Matthew Arnold, a pessimistic sort of man, पूरी तरीके से निराशावादी व्यक्ति। चाहे कितनी भी खुशियां इनके जीवन में भरी हो, शुरुआत ये कितनी भी खुशी से करें, लेकिन अंत में इनको रोना ही रोना है। And that's why as fun it is said that he was in love with goddess Melancholia. ऐसा कहा जाता है मजाक में कि इनको गॉडेस मेलंकोलिया से प्यार था। Melancholia was a goddess in the Greek mythology. यूनानी पुराणों में, यूनानी माइथोलॉजी में मेलंकोलिया was the goddess of sorrow. ये दुख की देवी थी। जिससे इनको प्यार हो जाए उसके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। तो मैथ्यू आर्नल्ड was one of them. देखिए, मैथ्यू आर्नल्ड से संबंधित चीजों के लिए कहा जाता है, मैथ्यू आर्नल्ड सेज साइंस एडवांसेस कल्चर डिक्लाइंस। कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा है। देखिए, साइंस advances culture declines. साइंस जैसे जैसे ऊपर जाएगा, संस्कृति वैसे वैसे ढहेगी। और कल्चर इज सिनोनिमस टू, यहां देख लीजिए, सिनोनिमस टू रिलीजन। अगर कोई पूछे कल्चर का यहां क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे धर्म। यहां कल्चर का अर्थ है धर्म।
संस्कृति। संस्कृति का अर्थ यहां धर्म के सेंस में लिया गया है। मैथ्यू अर्नल्ड को यही चिंता थी कि धर्म कहीं इतना न नीचे गिर जाए कि समाज का अंत हो जाए, साइंस इतना न ऊपर चला जाए कि समाज का अंत हो जाए। एंड इफ यू हैव टू गो थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड रिलीजन इन पोएट्री, इफ यू वांट टू सी अ क्लास, if you want to see the dissatisfaction of Matthew Arnold, go through only two poems, you'll find that. One is Dower Beach, and next one is I am forgetting the name. Next one is The Scholar Gypsy. Yes, name is The Scholar Gypsy. Dower Beach and Scholar Gypsy. Dower Beach and Gypsy. These are the two poems. If you go through that, find the great conflict. कुछ लाइंस में इसकी सुनाता हूं, आपको पता चल जाएगा। डावर बीच की लास्ट 9 लाइंस शुरुआत होती है ऐसे, जो शुरुआत है, सी इज काम टू नाइट, टाइड इज फुल, मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल वे, कुछ इस तरीके से। और लास्ट की 9 लाइंस, लव लेट अस बी ट्रू, पेसिमिज्म को खोजने कोशिश करिए, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as undarkling plains, swept with the confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies are classed by night. यहां पेसिमिज्म आपको देखने को मिलेगा। we'll go through. And डावर बीच की बात करें, स्कॉलर जिप्सी की बात करें, तो उसमें 4 लाइंस आती हैं जिसमें पूरी तरीके से उसने विक्टोरियन एज का वह समय और पिछले समय में अंतर दिखा दिया, कितना बुरी अवस्था में युग पहुंच गया है। कहता है, Those were the days when wits were fresh and clear and life ran gaily as sparkling streams with the confused alarms of struggle and flight. Those were the days when wits were fresh and clear and life ran gaily as sparkling streams before this strange disease of modern life of sick hurry and divided aims. ये सब बीमारियां हैं। कैसे कहता है? Those were the days when wits were fresh and clear and life ran gaily as sparkling streams. जीवन कल कल की ध्वनि करती हुई स्पार्कलिंग टेम्स की तरह, टेम्स नदी की तरह आगे बढ़ रही थी, जब तक बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज, तब तक ये बड़ी विचित्र बीमारी नहीं आ गई, आप सिक हरी एंड डिवाइडेड एम्स। सबके उद्देश्य अलग अलग हो गए। रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी चर्चा कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग was never found in the dilemma of Victorian period. He was aloof from his society, and in order to get optimism, he went back to the period of Renaissance, Italian Renaissance. वो he is said to be robust optimist. इनको हम robust optimist कहते हैं। ये कहते हैं there must be a wish to die with. ये कहते हैं कि एक इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ हम मरें तो मरने में भी अच्छा लगेगा। ये डायलेमा में कभी नहीं पड़े, डायलेमा में पड़े ही नहीं कभी। ये इनका बस एक उद्देश्य था। देखिए डायलेमा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। ही वॉज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ये देखिए, एक अस्तित्ववादी थे। अस्तित्ववादी कौन होता है? जो जीवन के एक एक पल में विश्वास रखता है, खुशियां ढूंढता है। जैसे एक कहानी है, सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज गोइंग समवेयर थ्रू अ जंगल। एक जंगल पे होके गुजर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक शेर मिल गया। शेर ने इनको दौड़ाया, ये भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गए बचने के लिए। शेर नीचे बैठ गया, स्टार्टेड वेटिंग फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग टू कम डाउन, कि वो नीचे आए तो हम उन्हें खाएं। रॉबर्ट ब्राउनिंग बैठे बैठे ऊब गए। उन्हें लगा कि यार ऐसा ना हो कि रात को भालू आ जाए और ऊपर चढ़ के खा जाए, तो बचना चाहते थे। तो अगल बगल देखा तो नीचे एक कुआं दिखा उनको। उन्हें लगा कि नीचे कुएं में चल के बैठ जाते हैं
और शेर जब ऊपर देखेगा, मैं दिखूंगा नहीं तो चला जाएगा, फिर मैं निकल आऊंगा। तो जो बरगद के पेड़ पर वो चढ़े हुए थे, बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, लताएं होती हैं, जो स्ट्रिप्स होती हैं, उसको पकड़ के वो नीचे जा रहे थे। जैसे ही आधा कुएं में पहुंचे थे, देखे कुएं में एक बहुत बड़ा सा वेरी बिग पाइथन वाज वेटिंग फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग देयर। एक बहुत बड़ा अजगर वहां बैठ के उनका इंतजार कर रहा था। इनको लगा आप क्या करें, ऊपर शेर नीचे अजगर, ऊपर देखा तो शेर भी झांक रहा था। अब बीच में लटके हुए हैं, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ शेर, एक तरफ अजगर, बीच में लटके हुए हैं। जो कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डायलेमा। डायलेमा की स्थिति है, किधर जाऊं, कुएं में जाऊं कि खाई में जाऊं, गोली से मरना पसंद करूं कि फांसी से मरना, दोनों कंडीशन में है। शेर से मरना पसंद करूं कि अजगर से, दोनों कंडीशन में है। बहुत बुरी स्थिति है। इसी दौरान मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगाया हुआ था बरगद के पेड़ पर, और एक बूंद उस छत्ते से शहद की उसके जबान पर गिरती है, और वो कहता है वाह क्या बनाया है। ऐसी सिचुएशन में भी ही इज केपेबल ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। वो जीवन को एंजॉय कर सकता है। दोनों तरफ मौतें खड़ी हैं, फिर भी वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। एक पल के लिए शहद गिरा, एंजॉय किया। दैट इज कॉल्ड एक्सिस्टेंशियलिज्म। तो कुछ इस तरीके का लिटरेचर जो था, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा विक्टोरियन लिटरेचर में। इस समय चार्ल्स डिकेंस थे, इसी समय टॉमस हार्डी नाम के एक नॉवेलिस्ट आए, जो बाद में मॉडर्न एज तक लिखते रहे, पोएट्री लिखा मॉडर्न एज में, अभी नॉवेल लिखा। तो लॉट ऑफ थिंग्स विल फाइंड इन विक्टोरियन एरा। दिस इज अ ब्यूटीफुल एज फॉर लिटरेचर स्पेशली, बट in order to see all the things, in order to understand all these things, in order to know the facts of this period, you must take admission. आपको एडमिशन लेना पड़ेगा. Only after that you will take classes on RF. So this much for today. Thank you.